ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ? ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ? ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਨੇ? मुसलमान अगे थोड़े ने। मसीह में सबकी सलामती चाहता हूँ नाज़रीन। मैं सुनील गौरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक दर्दनाक स्टोरी, एक ऐसी कहानी जिसको सुनने और समझने के बाद यकीनन आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। जबरी तब्दीली मज़हब का जो बिल है उस पर ऑब्जेक्शन लगा दी गई या वो किसी भी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। दरअसल हमारे जो हुक्मरान हैं वो ये बिल चाहते ही नहीं कि पास हो। अब उसके असरात वंस अगेन आपके सामने हैं। मजबूर बाप मेरे साथ मौजूद है जो पता नहीं कैसे यहाँ तो पहुंचा। अब इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि इनकी जवान साला बेटी के साथ क्या हुआ। मेरे साथ रहिएगा। पर की ना बैद पूरा ना किए बैद मसीह बल चमन लाल कितों आए यंगस्टराबाद यंगस्टराबाद। अच्छा, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਹਰਕਤ ਕੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗਈ ਸਕੂਲ, ਰੱਖਿਆ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਡਲਪੁਰ ਪੜਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਉਰਫ ਉਹ ਜੋਗੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਰਫ ਜੋਗੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਹਾਜੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ। ਹਾਜੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਾਪਰਾ ਪੱਠਾ ਪਿੰਡ ਚਾਪਰਾ ਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਘਲਾਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, 3-4 ਬੰਦੇ ਸਨ। ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਕੌਣ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਜੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ। ਹਾਜੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਜੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੱਥ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਗਈ, ਮਾਡਲਪੁਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਜਨਸਨਾਬਾਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਡਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਸੁੱਟੀ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਰ। ਪੜ੍ਹ ਸਾਹੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ FIR ਕਟਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ FIR ਕਟਾਈ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਕੌਣ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਜੀ DPO ਆਫਿਸ ਵੀ 2 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ? ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜੀ FIR ਵੀ ਮੈਂ ਲਹਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ FIR ਮੇਰੀ FIR ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਛੱਡੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਪਰਚਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਚਾ ਤੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਅੱਛਾ, ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਿਆ DPO ਆਫਿਸ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲਵਾਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ। ਨਹੀਂ, DPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੀ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ DPO ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ SH ਵੀ। DPO ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾ DPO ਦੇ ਆਫਿਸ SH ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, तेरी बच्ची बयान देगी। मैं मेरी बच्ची किवें बयान दे सकती है जब 16 साल की भी नहीं हाल पूरे दी। 16 साल की बच्ची है नाज़रीन, और वो बताया जा रहा है कि उसने बयान दे दिए हैं। वो वालिदैन कहाँ पे खड़े हैं जिनके लख्ते जिगर, जिनकी इज्जत दिन दहाड़े उसको उठाया गया, उसको अगवा किया गया। और ये इस्लाम को ये इन्होंने क्या मजाक बना के रखा हुआ। हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, कोई रुका ही नहीं हादसा देखकर। एक बेटी, जवान साला बेटी, जिसको माँ बाप ने बड़े मुश्किल से बड़े कहरों के साथ पाला होगा। पता ये चलता है कि उसको एक हाजी महमूद वगैरह ने उसको स्कूल जाते हुए अगवा कर लिया। कार्ड भी दिखाओ जी कार्ड। ये है जनाब हाजी मियाँ जुल्फकार अली के नाम से। ये शुरू अल्लाह के नाम से करते हैं और यकीनन जो भी काम करते हैं वो इंसानियत के खिलाफ ही करते हैं। मैं अलिनान इन हाजी साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो आपने हरकत की है इसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यकीनन आप भी अपनी बहनों बेटियों वाले होंगे और एक माँ बाप का जो दुख होता है आज ही तो कल आपको ज़रूर
उसका एहसास हम दिलवाएंगे आप। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਨਾ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ किंदे ਐਸਐਚ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਲਿਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਚਾਚਾ ਨਾ ਤੂੰ ਰੋ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਐਸਐਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਿਵੇਂ अच्छा डीपी साहब को ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਐਸਓ ਸਾਹਿਬ को ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਨਾ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਰਦੇ ਤੂੰ ਮਰੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਿਆਨ ਦੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਬਸਟਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਟਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ मैंने इनको मना किया था कि आप हमारे पास ना आइएगा हम आपके पास आएंगे नाज़रीन लेकिन एक माँ बाप का जो दुख है 10 मिनट भी आपके बच्चे आपकी आंखों से दूर हो जाते हैं तो आपकी जान निकल जाती है अब 2 महीने होने वाले हैं 2 महीनों में ये दोनों बेबस माँ बाप रोज़ाना जीते हैं और रोज़ाना ही मरते होते हैं ਇਹ ਜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਡਿਆ ਪੜਾਉਣ ਡਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਹ ਲਈ काम की करते हैं ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ पल्लेदारी का काम फैक्ट्री च। ਤੁਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਤਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਡਲ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੰਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਾ अच्छा मैंने दसो पुलिस ने क्या करी उन्हें बयान दे दिते उन्होंने अपने हाथ चुक लेते पर्चा कट दिता मेहरबानी कर ਹਾਂਜੀ अच्छा हुण उस तो बाद तुसी कोर्ट गए अदालत गए ਹਾਂਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ 10000 ਰੁਪਇਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਿਆਨ ਦੇਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਦਰ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਨਨਕਾਣੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਗੱਲ ਆਂਦੇ ਧੱਕੇ ਗੁਮਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਟੁਰ ਜਾ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਡੀਪੀਓ ਕੋ ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਣਾ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਡੀਪੀਓ ਨੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਿਆਨ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨਹੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਘਰ ਭੱਜਿਆ ਨੱਠੇ ਫਿਰਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਕਦੀ ਸੂਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇਤੇ ਜੋਗੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣ ਡਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਡਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ मैं शायद मेरे पास अल्फाज कम पड़ेंगे जबरी तब्दीली मजहब का जो है बिल है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है पता चलता है ये तो राय दी जा रही है मुस्तरद नहीं किया गया ये राय दी गई है भाई जिन्होंने पास करना है जिन्होंने सारे मामला करने हैं उन्होंने अगर ऑब्जेक्शन लगा दिया तो इसका मतलब ये मुस्तरद है इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल पास हो चुका है उसके अनासर उसके असरात अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे भाई अपनी बेटी की फरियाद को लेके बैठे हैं और ये जो हाजी मियाँ मोहम्मद जुल्फ़कार अली साहब हैं ये बच्ची इस वक्त इनकी कस्टडी में है और ये एक चैलेंज है मुतलका डीपीओ साहब के लिए भी मुतलका पुलिस के लिए भी कि वो इसके ऊपर कोई सीरियस एक्शन नहीं कर सकते क्योंकि इस्लाम जो है खुदावन के फजलो करम से सुपरसीड करता है आने पाकिस्तान और उस सुपरसीड करने के अंदर हमारे लिए क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारी माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं वो अपनी बच्चियों को पैदा करते हैं इनके लिए उनको जवान करते हैं इनके लिए और वो एक दिन आता है जब वो नज़र आता है कि अब ये हमारे जना करने के लायक हो चुकी हैं उनको उठाते हैं उनको जबरी इस्लाम कबूल करवाते हैं उसके बाद उनसे निकाह करते हैं उनको बेटी क्यों नहीं बनाते उनको बहन क्यों नहीं बनाते उनके सर के ऊपर हाथ क्यों नहीं रखते सिर्फ जना की गल से इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है
और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुतासरा फैमिलीज मोस्टली हमारे क्रिश्चियन लोग हैं, हमारे मसीही लोग हैं, जो दबे हुए हैं, जो परेशान हैं। इस बंदे से चला नहीं जा रहा है, बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया है और वहाँ से किराया पता नहीं किस तरह से इसने मैनेज किया और यहाँ तक पहुँचा है। कौन सुनेगा इनकी आवाज़? कौन बनेगा इनकी आवाज़? कौन देगा इनको इंसाफ? और अगर मैं बात करूं हमारी दूसरी सियासी लीडरशिप की, इनके भी बस की बात नहीं। आप अपनी अपनी जमायतों के मुलाजमीन हैं, हमारे लीडर नहीं हैं। आपके पास इख्तियारात नहीं है, आपको सिर्फ तनख्वाह दी जाती है, सिर्फ आप कॉल करते हैं, आपकी बात को सुने ना सुने अगले बंदे की मर्जी है। सवाल यहाँ पे ये है कि हमारी बेटियां, हमारी इज्जतें कब तक गैर महफूज रहेंगी? उनको कौन बचाएगा? इमरान खान साहब, आपसे मैं मुखातिब होना चाहूँगा कि आपने तो बड़े वसूब से कहा था कि अक़लीतें जो है मुक़द्दस अमानत है और पता नहीं क्या क्या आपने बड़ी बड़ी बातें की हैं, वो तो कहीं भी नज़र नहीं आती। महंगाई को भी मैं बात नहीं करता, हमारी बेटियों का कौन जिम्मेदार है? आज इनकी एक बेटी गई है, कल दूसरी चली जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा? हम भी अपनी बेटियों वाले हैं, बच्चों वाले हैं। और अगर आप एक्सट्रीम लेवल चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसको जान से मार दिया जाए, तो आप 302 का पर्चा दे देंगे उसको। तो फिर आप ही रोक सकते हैं, रियासत ही जिम्मेदार है हर शहरी के जानो माल की। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब गवर्नमेंट वालों से और ख़ास तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब, कि ये गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है, आप ही कुछ करें। और मैं गुजारिश करूंगा, मेरे साथ बहुत ही प्यारे भाई फलक शेख गिल साहब मौजूद हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि से गोरी साहब के आप इस जैसे लोगों गरीबों की हिम्मत बनते, सबसे बड़ी तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि देखें, मुझे ये समझ नहीं आती, यहाँ पे भी ये इनके मुसलमान निकाहनामे पे भी 16 साल लिखा हुआ है, 15-16 साल लिखा हुआ है। अब ये कौन सी मजहब इजाजत दे रहा है कि 16 साल की बच्ची को ले जाए दुआ कर? महमूद अली जो बंदा है, जो 4 दोस्तों के साथ आया है वाइट करोला गाड़ी में, वो जाके इस 16 साल की बच्ची जो यूनिफॉर्म ज्योमेट्री बुक्स उसके हाथ में, किस मुझे ये समझ नहीं आती, इस मौलवी को क्यों नहीं पकड़ा जाता? इस मौलवी से क्यों नहीं पूछा जाता क्या तुम्हारी बच्ची नहीं है? इसकी क्या बच्चियां नहीं है? क्या हमारी बच्चियों पे जुल्म होना, हमके साथ ही जुल्म होना? फिर इसके बाद जब ये कोर्ट में जाते हैं, जी बयान हो गए, फिर मजिस्ट्रेट लिख देता है ये बच्ची 18 साल की है, जबकि ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स क्या झूठा है, बर्थ सर्टिफिकेट क्या झूठा है, जिसको ये गवर्नमेंट इसको झूठा बना देती है। ये 18 साल की, ये मजिस्ट्रेट ने कैसे इसको बना दिया झूठा? ये बयान है मजिस्ट्रेट के, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, निकाहनामा है लाहौर में, ये निकाह हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स है। इस हमारी बच्चियों के साथ इतना जुल्म हो रहा है और ये मजीद होने वाला है। मैं हुकूमत से, खास करके एजाज आलम गस्टियन साहब मिनिस्टर है जो ह्यूमन राइट्स के, हरून गिल MPA साहब और मैडम शीला रूस से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी बच्चियों को बचाएं। तलक ननकाना साहब और इसी गांव से है। मैं इसीलिए इस गरीब फैमिली, जो बंदा दिहाड़ीदार है, मजदूर है, इसकी बीवी मजदूर है, पता नहीं कैसे करके बच्चियां पढ़ा रहे थे, इन्होंने जनाब आते हैं हमारी बच्चियां पढ़ती, थोड़ा सा ये महमूद अली, फिर इनके सरपरस्त जो होते पट्टे मालकान, उनका हाल देखें। वो उन्होंने कहा है आप जितना भी जोर लगाना है, लोगों ने इसको फोन किया है हाजी मियां मोहम्मद जुल्फकार अली को, उसने कहा मेरे पास बच्ची है, मेरे पास है, वो अब मुसलमान है, इस्लाम कबूल कर लिया है, हमारे पास है, जो कुछ करना आप लोग कर ले। क्या कलियत, जो किसी और कलियत की बच्ची पकड़ी जाती है, गवर्नर को वक्ता पड़ गया था, आपको याद है? गवर्नर ने सिख बच्ची को लाख उनको दिया था। क्या ये क्रिश्चियन बच्ची इनके साथ है? हम तो कमजोर लोग हैं, हम तो कीड़े मकोड़े पैदा नहीं हुए के लिए। और वो जो मुसलमान है छाती पे ऐसे हाथ मार के कहते रहे हैं कि जाओ जो होता दिखा लो, असि नहीं देनी बच्ची। मेरा मकसद सिर्फ अपने मुल्क की बदनामी करना नहीं है। हमारा मुल्क है, हमारे ये जो जितने भी इकदाम हैं वो यकीनन हमारे मुल्क की बदनामी के लिए होते हैं, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारी बच्चियों के सर के ऊपर हाथ कौन रखेगा, उनकी इज्जतें महफूज कौन करेगा, कौन करेगा? नाज़रीन, बहुत सी बातें करने वाली, गुजारिश ये है कि मेरे खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी फ्रेंड्स जो हैं इस कानून को किसी भी तरह से पास करवाएं। और मैं अलानिया कहता हूं कि इस भाई के साथ हम खड़े हैं, इनको हम लीगल हेल्प भी देंगे, हर तरह के इनको जो भी हेल्प जरूरत होगी हम इनको देंगे। और
गुजारिश करूँगा कि ये जो हाजी साहब हैं, इनके पास बच्ची है, इसको किसी भी तरह से वागजात करवा के, बाजियाब करवा के वालदैन के हवाले किए। तड़ी मिसिस कितने गए? मिस्टर जी मेरे काम ते गए जी, तीन दिन उन्होंने लाए ने दिहाड़ी लिया के मैंने दी, मैं इतने आ गया। तो साहब मेरा केड़ा मतलब कि मसीह होना केड़ा गुनाह है? ये मुस्लिम करके तो मेरी बच्ची ने लै गए। मैं बड़ी फरियाद करने, मैं जाके थाने कचहरियां जिते भी गया कि मैं दस्या, मैं गया परने भी अपने सुटे ने, नहीं मेरी मां सुनते, कोई धक्के मार के मैंने बाहर कट देंगे। इस वीडियो को नाज़रीन ज़रा शेयर कीजिएगा अपना